Good morning, student. Lecture number 23 of chapter 9 differential equation. इस लेक्चर में शायद जितना भी कोर्स बोर्ड के एग्जाम में है, जितना भी सिलेबस चैप्टर 9 का बोर्ड के एग्जाम में है, उसका शायद ये लास्ट सम है। और इसी लेक्चर में मैं तीसरी मेथड जो है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो शुरू करने वाला हूं। और वो आखिरी मेथड, और वो मेथड कैंसिल है बोर्ड के एग्जाम में। ओके और वो मेथड बहुत ज्यादा इजी भी है। चलो अभी मैं स्टार्ट करने वाला जा रहा हूं 11 नंबर, सम नंबर 11 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 9। और बहुत ही बढ़िया सम है, इस पे कुछ ना कुछ नया है। ओके देखते हैं क्या नया है। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है x माइनस वाई इंटू dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस dy। गिवन दैट y is equal to -1 when x is equal to 0, which is initial condition. Okay, by using initial condition we find particular solution from general solution. Okay, first we have to find general solution and then we put x is equal to 0 and y is equal to -1, that is initial condition in general solution. And then we find arbitrary constant, value of arbitrary constant, that is c. And then again we substitute value of arbitrary constant c in general solution, and then we get particular solution of this differential equation. Okay, now we start from differential equation, and here we have differential equation is x minus y into dx plus dy is equal to dx minus dy. Now see here, dx multiply with x minus y, then we get x minus y into dx plus x minus y into dy is equal to dx minus dy. Now see here, minus dy, take opposite, then minus sign converting to plus sign, then we get here x minus y dy plus dy is equal to dx x minus y dx, take opposite, then minus x minus y dx. Now see, from these two terms dy is common, then here we get x minus y plus, and from these two terms dx is common, then bracket 1 minus x minus 1. Okay, now see here, dx taking denominator and x minus y plus 1 in denominator, dy upon dx is equal to in numerator 1 minus x minus 1, in denominator x minus y plus 1. See the question, see in bracket, what we get? We get here, we have to assume x minus y is equal to t in this sum. Okay, तो यहाँ पे x minus y is equal to t को assume करना है, वो हमें ब्रैकेट में दिया है। तो यहाँ पे मैं assume करने वाला हूँ x minus y is equal to, suppose x minus y is equal to t। तो यहाँ पे तो सभी जगह पे x minus y की वैल्यू t रखने वाला हूँ, तो वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे dy by dx क्या आएगा वो भी हमें देखना है। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। Now taking derivative both side with respect to x, here derivative of x is 1 and derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to dt by dx. Now dy by dx take opposite side dt by dx this side, then we get 1 minus dt upon dx is equal to dy upon dx. Now I put all this value in equation number 1 dy by dx की जगह पे
1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की जगह पे मैं रखने वाला हूं टी। देखो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इजी सम है, सिर्फ ये जो एज्यूम करना है वो बहुत अच्छा है। Therefore, 1 implies dy by dx, that means 1 minus dt upon dx is equal to, in numerator, 1 minus t, in denominator t plus 1. ओके, अब देखो यहाँ पे dt by dx को मैं ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं, तो ये टर्म 1 minus t plus 1, इसको इस साइड पे 1 minus t upon t plus 1 is equal to dt upon dx. Now I take LCM this side, then t plus 1 multiply with 1 t plus 1 and minus multiply numerator, then minus 1 minus minus plus t in denominator, t plus 1 as it is equal to dt by dx. Now see numerator 1 cancel, then in numerator 2t, in denominator t plus 1 dt by dx. Now which method apply? Variable separable method. यहाँ पे जो दो वेरिएबल है t और x, दोनों को मैं सेपरेट करने वाला हूं, तो यहाँ पे dt है तो t plus 1 यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2t यहाँ डिनोमिनेटर में, और dx आएगा इस साइड पे, तो dt इज इक्वल टू t plus 1 upon 2t dt. Now I apply the integration, then we get integration dx is equal to integration t plus 1 upon 2t dt. Now split here, then integration dx is equal to t cancel 1 by 2 which is constant, then I take outside integration dt plus 1 by 2 integration t dt. Okay, whole equation multiply with 2. ओके, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन dx, तो यहां पे 2 चला जाएगा, तो dt प्लस इंटीग्रेशन 1 अपन t, सॉरी यहां पे आएगा 1 बाय t, 1 अपन t d। अब क्या करने वाले हैं, अब यहां पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाले हैं, तो 1 है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x, यहाँ पे 1 है तो उसका इंटीग्रेशन रहेगा t, और 1 अपन t का इंटीग्रेशन होगा log t प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ओके, तो ये अभी जनरल सॉल्यूशन नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हमें t की वैल्यू x माइनस 1 रखनी है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पुट t इज इक्वल टू x माइनस 1, put t is equal to x minus 1, then this side 2x as it is equal to t means x minus y plus log t means modulus of x minus y plus arbitrary constants, यहाँ पे मॉड्यूलस आएगा। अब देखो x माइनस y और c, ये तीनों टर्म को ऑपोजिट साइड में ले जाता हूं, तो 2x माइनस x दैट इज x माइनस y टेक दिस साइड, देन प्लस y माइनस इज इक्वल टू log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y, मींस log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू x प्लस y माइनस c, ओके, व्हिच इज आवर जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया, तो यहाँ पे लिख लेता हूं which is जनरल सॉल्यूशन। लेकिन यहां तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यहां पे इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन है x is equal to 0 and y is equal to -1. Now we put this value in our general solution, and I write put x equal to 0 and y is equal to -1 in
general solution, that is in question number 2. Put x equal to 0 and y is equal to -1, then we get log modulus 0 minus -1 is equal to 0 plus -1 minus 0 minus -1, that is log 1 is equal to -1 minus c. And we know value of log 1, which is 0 minus c, take this side, then we get c is equal to -1. Now I put this value in equation number 2, then 2 implies log modulus of x minus y is equal to x as it is, y as it is, minus -1. Then our final answer is log modulus of x minus 1 equal to x plus y plus 1, which is our particular solution. Okay, given differential इक्वेशन, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। मतलब जितना भी पोर्शन बोर्ड के एग्जाम में है वो सब हमारा खत्म। अब क्या, तो जो लास्ट मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, वो मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहली मेथड हमारी क्या थी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरी मेथड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो उस मेथड, ये तीनों मेथड फिर से मैं एक बार लिख लेता हूं। तो पहली मेथड हमारी क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरी मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरी और आखिरी मेथड वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इसको हम बोल सकते हैं LDE, टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल कितनी मेथड है, 3 मेथड। 2 मेथड की हम बात कर चुके हैं इसी लेक्चर में। हम तीसरी मेथड जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी बात करने वाले हैं। तो ये मेथड क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन का फॉर्म कैसा है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब इस लेक्चर में बात करेंगे। अगले लेक्चर में शायद हम क्या करने वाले हैं, इसके रिलेटेड जितने भी सम हैं वो, मतलब एक्सरसाइज 9.6 और उसके रिलेटेड सम। ओके, लेक्चर यहीं पे खत्म कर, नहीं अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात बाकी है। ओके, चलो बच्चों, अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है पहले वो देखते हैं, और बाद में उसका दूसरा फॉर्म भी है, वो क्या है वो भी देखते हैं, और उसके जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल भी मैं देने वाला हूं, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बाद में बताने वाला हूं। चलो स्टार्ट कर रहा हूं अभी। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसे फॉर्म में है dy अपन dx प्लस p y इज इक्वल टू q, dy बाई dx प्लस p इंटू वेरिएबल y इज इक्वल टू q, वेर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली। तो यहाँ पे जो p और q है, p एंड q, ये दोनों कांस्टेंट है या फिर x की टर्म का कोई फंक्शन है। p और q y की टर्म का फंक्शन कंपलसरी नहीं होना चाहिए। ओके, ये y की टर्म का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी y ही होना चाहिए।
y/1 है, y/1/2 बिल्कुल नहीं चलेगा, 1/y, log y, रूट y, sin y, ये सारी टर्म चलने वाली नहीं है। कंपल्सरी में क्या चाहिए, यहाँ पे y/1 और dy/dx का कोएफिशिएंट भी देख लो, यहाँ पे क्या है 1, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है dy/dx plus py is equal to q where p and q both are constant, okay, और functions of x की टर्म का कोई फंक्शन होने वाला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, ऑब्वियस फर्स्ट ऑर्डर dy/dx के फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका दूसरा फॉर्म भी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अनदर फॉर्म, ओके, तो उसका दूसरा फॉर्म। तो सिर्फ वेरिएबल को चेंज करना है, मतलब उसका दूसरा फॉर्म है dx/dy प्लस p की जगह पे हो जाएगा p वैसा का वैसा ही, लेकिन p1 यहां पे लिखता हूं, p1 y है उसकी जगह पे x इज इक्वल टू q1। देखो बिल्कुल इसके जैसा है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल में चेंज है। तो यहाँ पे P1 और Q1 क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं where P1 and Q1, शायद आपको पता चल रहा होगा, where P1 and Q1 are constants or function of variable y only, ओके। तो ये जो यहाँ पे P1 और Q1 मैंने लिखा है वो कांस्टेंट रहेगा या फिर ओनली y की टर्म का कोई फंक्शन। तो यहाँ पे भी देखो सेम इसी टाइप का dx/dy का कोएफिशिएंट कंपल्सरी 1 रहने वाला है, P1 Q1 कांस्टेंट है या फिर y की टर्म का कोई फंक्शन। और यहाँ पे जो x है वो कंपल्सरी x होना चाहिए, मतलब कि 1/x नहीं चलेगा, sin x, log x, x⁻⁻1 रूट x बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, ओके। तो यहाँ पे कंपल्सरी x रहेगा, ओके। कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखो पहला एग्जांपल, dy/dx प्लस इस टाइप का dy/dx प्लस 5xy इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करो इसके साथ, तो y है, यहाँ पे p क्या है, तो वो है y के आगे जो भी है साइन के साथ लिखना है, तो प्लस 5x, और यहाँ पे q की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे साथ में मैं p और q की वैल्यू भी लिखता हूँ, p मींस 5x, q मींस 7। दूसरा इक्वेशन में लिखता हूँ dy/dx माइनस 1/√1 - x² into y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखो यहाँ पे सेम इसी टाइप का इक्वेशन है, dy/dx प्लस p की वैल्यू क्या है, -1/√1 - x², और ये जो y वैसा का वैसा ही, और q जो है साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे होगा p इज इक्वल टू -1/√1 - x, और q हमारा है साइन इनवर्स x। p और q यहाँ पे दोनों मिल गए। अभी बात करने वाले हैं दूसरे कुछ एग्जांपल की। तीसरे नंबर का एग्जांपल dx/dy प्लस 1/y इंटू x इज इक्वल टू tan y, ओके। तो यहाँ पे देखो dx/dy मतलब इस टाइप का फॉर्म है, dx/dy p1 और q1, p1 क्या है y का फंक्शन और q1 भी y का, तो यही है। तो
यहाँ पे P1 जो है वो है y1 1/y सॉरी 1/y और Q1 हमारा है tan y। ओके, तो ये अनदर फॉर्म, जो दूसरा फॉर्म है उस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। 4 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 1/y dx अपन dy प्लस x इज इक्वल टू e रेज टू y। अब देखो यहाँ पे dx अपन dy के आगे तो कोएफिशिएंट कितना चाहिए 1, तो पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई किया 1/y इंटू y, तो चला जाएगा dx अपन dy प्लस y इंटू एक्स इज इक्वल टू e रेज टू y। अब कंपेयर करो dx अपन dy प्लस p1 इंटू एक्स, p1 मतलब होगा हमारा y और q1 हो यहाँ पे आएगा e रेज टू y इंटू y, तो q1 आएगा e रेज टू y इंटू y। तो ये सारे एग्जाम्पल है, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले क्या करना होगा, तो पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा, ये वाला या फिर ये वाला, उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना होगा, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म। ओके, तो पहला नंबर है इसमें write the differential equation in the form, कौन से फॉर्म में, dy by dx प्लस p इंटू y इज इक्वल टू q, और ये नहीं होगा तो दूसरा होगा dx अपन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। तो पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, dy अपन dx प्लस py इज इक्वल टू q, या फिर dx अपन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। दूसरी चीज क्या है, तो यहाँ पे हमें लिखना है p और q की वैल्यू, या फिर p और q हमें यहाँ पे लिखना है p और q या फिर P1 एंड Q। तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा, राइट P एंड Q और P1 एंड Q1, P1 एंड Q1। तो यहाँ पे हमें P और Q क्या है, या फिर P1 एंड Q1 क्या है, वो हमें लिख के रखना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और बाद में कौन सा फॉर्म है, अगर ये फॉर्म हुआ dy अपन dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो लिखो p और q क्या है। अगर ये फॉर्म हुआ dx अपन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, तो लिखो p1 एंड q1 क्या है, दोनों फंक्शन हमें लिखना है। और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट मींस ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तीसरा पॉइंट देख लो, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो भाई ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका यूज इसके सॉल्यूशन में हमें करना है। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे फाइंड करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन p dx
ओके, अगर ये फंक्शन हुआ हमारा, ये फंक्शन हुआ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, तो यहाँ पे p क्या आएगा, x की टर्म का कोई भी फंक्शन या फिर कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेस टू इंटीग्रेशन p dx, या फिर इस फॉर्म में है अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने वाला है e रेस टू इंटीग्रेशन p dy, क्योंकि p1 सॉरी, क्योंकि p1 यहाँ पे y की टर्म का फंक्शन है। ओके, मतलब यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है, तो ये खास याद रखिएगा कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है। अगर ये फंक्शन ये फॉर्म हुआ तो इंटीग्रेशन e रेस टू इंटीग्रेशन p dx, या फिर ये इस टाइप का फॉर्म हुआ तो e रेस टू इंटीग्रेशन p1 dy। और यहाँ पे खास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर पावर में इंटीग्रेशन करते हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे लिखना नहीं है। अगर सपोज p की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, e रेस टू इंटीग्रेशन 1 dx, तो यहाँ पे हो जाएगा e रेस टू x प्लस c, एक्चुअली होता है e रेस टू x प्लस c, लेकिन हमें यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखना नहीं है, e रेस टू x ही लिखना है। ओके, खास याद रखिएगा। ओके, तो अब लास्ट पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, तो ये पॉइंट का यूज करके हम कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन राइट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा नंबर है, write the general solution of differential equation, तो सॉल्यूशन कौन सा है, एंड सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देख लो यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या फिर अगर दूसरा फॉर्म है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, अगर इस टाइप का फॉर्म है तो यहाँ पे आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और अगर दूसरा फॉर्म है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सामने आएगा इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, ओके, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, और अगर यहाँ पे दूसरा फॉर्म है तो यहाँ पे आएगा q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो पहला फॉर्म है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की टर्म का आने वाला है, और यहाँ पे q वो भी x का फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन हम x के लिए करने वाले हैं। और अगर दूसरा फॉर्म है तो q1 वो भी y की टर्म का फंक्शन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो भी y की टर्म का आने वाला है, तो ये दोनों का इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम y के लिए। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो सिर्फ इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है, और ये इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, तो ये मेथड हमारी खत्म हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, दूसरा फॉर्म है dx अपन dy प्लस p1x इंटू q इज इक्वल टू q1। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट वी राइट डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म dy बाई dx प्लस px py इज इक्वल टू q, या फिर dx अपन dy plus p1x is equal to q1, and then we write p and q or p1 and q1। अगर ये फॉर्म हुआ तो pq क्या है वो लिखना है, और ये फॉर्म हुआ तो p1 and q1 क्या है वो लिखना है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज e रेज़ टू इंटीग्रेशन p dx, अगर दूसरे वाला है तो e रेज़ टू इंटीग्रेशन p1 dy, और बाद में डायरेक्ट आप लिख सकते हो सॉल्यूशन y इंटू
अगर पहले वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ तो पहले वाला जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हुआ तो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अगर दूसरे वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ तो x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q1 into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस। ओके, अगले लेक्चर में इसके रिलेटेड जो सम और एग्जांपल है उसकी बात करने वाले हैं, लेकिन ये टॉपिक कैंसिल है, खास याद रखिएगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है। ओके, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूं, अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। जो पहला सम था आज के लेक्चर में, जो पहला सम लिया है x माइनस वाई इक्वल टू टी वाला, वो बहुत ही बढ़िया और IMP सम था, तो वो भी कंप्लीट कीजिएगा अच्छी तरह से। ओके।